ਤਸਬੀਹਾਂ ਫੇਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਲ ਤਸਬੀਹਾਂ ਫੇਰੋ। ਜੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਫਾਈਆਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਤਸਬੀਹਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਤਸਬੀਹ ਫੇਰ ਫੇਰ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਤਸਬੀਹ ਫੇਰ ਫੇਰ ਕੇ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫਾਂ ਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਓ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਕਰੋ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸੱਚੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਬਾਦਤਾਂ 'ਚ ਮਗਨ, ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰੇਗਾ? ਫਿਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਏਗਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸਤ, ਇਹ ਸਾਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਿਓ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਭਰਾ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋਸਤ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੱਜਣ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਤਰ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਖਰੀ ਤੇ ਸੱਚੀ, ਕਿ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਤੇ ਬੁਰੀਆਂ ਤੇ ਭੈੜੀਆਂ ਇਲਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਸੱਚੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇਨਸਾਫ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਝੂਠ ਦਾ ਚਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਜੇ ਮੁਕਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਪਰਵੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲੂਕਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਾਇਦਾ ਪਰਵੀਨ ਕੇ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਚੇਨ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਐਂਡ 'ਤੇ ਪਰਵੀਨ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਬੋਲੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ, ਕਿ ਢਿੜਕੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਢਿੜਕਣੀਆਂ ਜੇ ਦਹੀਆਂ ਅਤੇ ਲੱਸੀਆਂ, ਅਤੇ ਪਾਈ ਜੋ ਪਾਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਢਿੜਕ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਨੁਕਤੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦੀ ਜੇ। ਮੁਕਾ ਲਵੋ ਗੱਲਾਂ ਜੇ ਮੁਕਾਣੀਆਂ ਜੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰੋ, ਬੁਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਫੈਲਾਓ। ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਚਿੱਟਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਲੇ ਵਧੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਜੀਬ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਆਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਫਜ਼ੂਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨੀ ਗੋਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗਦੇ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਐਂਡਾ ਭੇਦਭਾਵ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਮਾਵਾਂ ਵਿਆਹ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਕਾਲਾ ਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡੀ ਗੋਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਨਾਲ ਪੇ ਵਿਆਹਨੀ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਭੇਦਭਾਵ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਂਵਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ
कई कुड़ियां मैं खुद देखियां जिन्हां दे रंग काले सन, उन्हां दा विआह ही नहीं सी हुंदा, उन्हां दियां भैणां छोटियां दे विआह हो गए, लेकिन उन्हां दे ना होए। ये भेदभाव जिहड़ा जिन्हें खत्म कर दिओ। गल एक नुकते ते मुकदी। याद रखो, अल्लाह अल्लाह ते अल्लाह तो बाद कुछ नहीं, और अल्लाह ने जो फरमाता है ना वो ही साढ़े लिए असल होना चाहिए। साढ़ा दीन मजहब साढ़ा कुल जहान जिहड़ा वे ना वो ही होना चाहिए जो उन्हें फरमा दिता है। और उन्हें जिहड़ी चीज़ फरमाई है अगर असी उहदे ते नहीं चलते तो असी काफर हाँ। काफर सिर्फ वो ही नहीं जिहड़ा मनदा नहीं पिया, वो तो मन ही नहीं रहा। उन्हें रब नूं जाके कहना मैं तो तैनूं मन्निया ही नहीं, तू मैनूं सज़ा होण दे जिहड़ी मर्जी, मैं तो तैनूं मन्निया ही नहीं तो तू मन क्यों कह रही है मैं काफर हाँ। मैं तो पहले दिन तो ही नहीं तैनूं पिया मनदा, मैं तो तेरे नाल शरीक खड़े कीते सन, मैं तो उन्हां नूं मनना सा। लेकिन जिहड़ा मनदा पिया असीं तो मनने आ पै ना, असीं तो अपने रब नूं मनने आ। असीं कहने अल्लाह वहदहू ला शरीक है, और असीं ईमान लाए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। असीं शरीयत ते अल्लाह पाक दे फरमान ते और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सुन्नत ते ईमान लिया है। ईमान लियाउण दा मतलब यह है कि तुसीं ओहदे उत्ते चलो जो वो सज्जन ने कह दित्ता तुहानूं। लेकिन जदों असीं उहदे ते नहीं चलते, साडी दुनिया विच बड़ियां गलत चीज़ां, असीं खुद बड़ियां गलत चीज़ां करने आ, सानूं बदलनियां पैणगियां। सानूं अपने आप नूं चेंज करना पैगा अगर असीं अपने मुआशरे नूं अच्छा बनाना चाहते हैं। साडे मुआशरे ते इंसाफ ही खत्म हो गए। साडे मुआशरे ते अदालतां दा कोई हुक्म जांदा है उन्हां कोल सिपाहियां कोल या फौजियां कोल, ते वो कह दिंदे ने कोई नहीं मनना इन्हां दा हुक्म। जिथे अदालतां दा एहतराम खत्म हो जाए, वो एहतराम खत्म होने की भी एक लंबी दास्तान है कि वो जेह्ड़े काजी बैठे सन, जेह्ड़े जज बैठे ने या बैठे सन, उन्होंने अपने दागदार कर दिता अपनी अदालतां नूं, अपने इंसाफां नूं। अज कोई इंसाफ नहीं साडे वतन च। अज झूठ दा बोल बाला है। अज वीडियो विच व्लॉग विच तुसी देखो तो ऐसी ऐसी चीज़ां तुहानूं नज़र आउणगियां, लेकिन बेगैरती दी इंतहा है, बेशर्मी दी इंतहा है। बहरहाल मैं तो दुखी हो के गल्लां कर दिंदी हाँ, कुछ तुहानूं पसंद आंदियां ने, तुसी मेरा व्लॉग देखते हो, मैनूं अच्छा लगदा है। मैं कहनी हाँ चलो कोई 100 चों कोई एक बंदा, 1000 चों 10 बंदे भी अगर मेरी गल नूं अपना लैण, समझ जाण, तो मैं समझांगी मेरा व्लॉग जेह्ड़ा बराबर हो गया। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का व्लॉग। एक नया दिन नया व्लॉग लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ अपने सज्जन मित्रों के साथ। देखो जी, मुझे किसी बहन ने ये कहा कि आप उनको तो सज्जन मित्र कह देती हैं, उन्होंने कहा मर्दों को कह रही हैं, जबकि मैं जो हूँ मुज़क्कर मुअन्नस से बालातर होकर सज्जन मित्र का लफ्ज़ यूज़ करती हूँ। लेकिन मेरी बहन ने ये कहा कि आप सज्जनियाँ और मित्रानियाँ भी कह दिया करें। तो बहनों, प्यारियों, सोनियों, आप सज्जनियों, आपको तो सबसे पहले मुखातब किया जाता है, लेकिन जब मैं सज्जन मित्र अपने कहती हूँ ना, तो उसमें मैं दोनों को ले आती हूँ। आप दोनों उसमें आ जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं हमने सज्जनी कहना है तो वो सज्जनी जो है मुअन्नस जो है वो हमारे सामने आएगा। सज्जन मित्र में सब आ रहे हैं, समझ के कुल आलम आ रहे हैं। सज्जन मित्र ही हो आप सारे मेरे, ख्वा औरतें हैं, ख्वा मर्द हैं, ख्वा बच्चे हैं, ख्वा बड़े हैं, ख्वा बूढ़े हैं, सब मेरे लिए सज्जन मित्र हैं, प्यारे हैं, मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम है। तो एक नया व्लॉग लेके शाहीना असद आपकी खिदमत में हाज़िर है।
आप हमेशा मेरी बातें पसंद करते हैं और मैं हमेशा आपसे वो बातें करती रहती हूँ। तो पसंद करने का शुक्रिया मेरी उन बातों को। मेरे दिल की जो बातें होती हैं मैं वो करती हूँ। मैं खुद वैसी बनना चाहती हूँ, मैं कोशिश करती रहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो देखने वाले हैं वो भी कोशिश करें, अपना हिसाब किया करें। अपना एहतसाब करना बड़ा ज़रूरी है। हम सारा दिन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। सुबह जब उठ के नमाज़ पढ़ते हैं तो अल्लाह से वादा करते हैं कि हम जो आज नमाज पढ़ी है तेरे से वादा किया है कि हमें चला सीधे रास्ते पर, उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरे नामो इकराम हुए, ना कि उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा गज़ब हुआ और जिन्होंने अपने पर खुद जुल्म किया। तो ये हम अल्लाह से मदद मांग रहे हैं कि हम तेरे बंदे हैं और तुझसे मदद चाहते हैं इस बारे में। तो सो मेरे सज्जनों, मेरी सज्जनियों, कोशिश करो कि अपना एहतसाब करो। जो वादा सुबह करते हो नमाज पे, कोशिश करो कि वो वादा सारा दिन पूरा कर सके। हम उन चीज़ों से बचें जिसका हमें हुक्म है। हमें उसने पैदा किया है, जो कहेगा वो हम तो वही करेंगे। बस ये सोच लो कि पैदा उसने किया है हमें, जो हमें उसने कहा है हमने तो उस पर चलना है। नुकसान कभी नहीं होगा। आप अगर सोचें ना कि हमारा नुकसान हो या भला हो, नुकसान कभी नहीं होगा। हमारे वालिदैन जब हमें किसी चीज़ से रोक देते हैं या रोकते थे तो याद करें, हम बड़े हैं ना, मैं अपनी बात कर रही हूँ, बड़ों की बात कर रही हूँ। बच्चे जो देख रहे हैं, जो नौजवान बच्चियाँ देख रही हैं, मेरी बेटियाँ बेटे, उनके वालिदैन अल्लाह सलामत रहे, उनको अगर किसी चीज़ से वो रोक देते हैं या हमें रोक देते थे तो हम वो कभी नहीं करते थे, क्योंकि हमें इल्म था कि हमें अम्मी जी अब्बा जी मारेंगे, हमने ये काम नहीं करना। और हमें ये यकीन भी था कि हमारे वालिदैन जो हैं वो हमारी बुराई की कभी कोई चीज़ नहीं, वो हमारे बेहतरी के लिए हमें समझाते हैं, हमें रोकते हैं। तो वो अल्लाह जिसने हमें बनाया है, तो आप रोज़ ये अल्लाह से और अपने आप से वादा किया करें कि मुझे अल्लाह ने बनाया है, अल्लाह मियाँ मेरे हैं, मैं अल्लाह की बंदी हूँ, तो मैंने तो वही काम करना है या बंदा हूँ जो अल्लाह ने कहा है। और फिर सारा दिन इसको रिपीट भी करते रहा करें और फिर काफ़ी बंदा अपना एहतसाब कर लेता है, बच जाता है इस चीज़। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे मेरे दिमाग में चलती रहती हैं, तो मैं आपसे भी शेयर कर लेती हूँ, डिस्कस कर लेती हूँ। तो आज का दिन जो है घर बैठी हुई हूँ, क्योंकि अभी असद साहब नहीं आए अभी तक, शायद अभी आ जाए 1:30 बजे तक। हाँ, अभी 1 बजे आ जाना चाहिए, 12:30 तक उनकी शायद क्लास थी, शायद एक्सरसाइज करने ना चले गए हों, ये भी हो सकता है। तो फिर वो ज़रा लेट आएंगे, 1:30 बजे 2 बजे तक आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो फिर बातचीत उनके साथ मिल के भी आपसे होगी, ठीक है। फिज़ा जानू नहा रही है, मैंने गुस्ल करके कपड़े उपड़े पहन के आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई। मैंने कहा फटाफट अपनी फैमिली से तो बात करूँ, वेट कर रही होती हैं हमारे व्लॉग का ठीक है। और मैंने अपनी बहन, क्या नाम है उनका, नाइला यास्मीन, तो उनसे भी मैंने यही कहना था कि वो खैर से जाएं। अगर आई हुई थी कनाडा में तो हमें उन्होंने नहीं कुछ बताया, तो आप खैर से जाएं। आपने स्पेशल हमें दुआएं दी हैं, बहुत शुक्रिया आपका। हमारी ग्रीस वाली बहन ने भी बहुत हमसे अच्छी बातें की हैं, बहुत शुक्रिया। तो ये मैं जिक्र कर देती हूँ, मेरे जहन में होता है तो आप लोगों के मैं नाम ले देती हूँ, लेकिन हम आपको पता है फ़िज़ा जो है वो सवाल जमा करती रहती है और फिर वो एक महफ़िल लगाती होती है सवाल जवाब की, जो आपके साथ महफ़िल सही थी हमारी। तो इंशाल्लाह ताला जल्दी वो महफ़िल भी होगी। लेकिन जब मैं रोज़ रात को पढ़ती हूँ सारे मैसेज और सब देखती हूँ तो आप सबको मैं ज़रूर जवाब देती हूँ। जवाब का ये मतलब नहीं है, जो ज़रूरी होता है उनको मैं तशक्कर करती हूँ, उनका शुक्रिया करती हूँ, लेकिन आप सबको अपना प्यार ज़रूर भेजती हूँ, ठीक है। तो बातचीत होती रहेगी इंशाल्लाह। अब ये सद आती हैं तो फिर बात करते हैं। लो जी फिज़ा आगे बेटा, हाँ जी, अस्सलाम बात ले आए, यस। छुट्टियाँ कर ली आज फटाफट। वो
बाल पे गिरते हैं ना, तो मैंने कहा ऐसे सिमट जाएंगे। चले, अच्छी बात है अभी जूते। कहीं बाहर जाएंगे फिर खोल लूंगी। हाँ फिर तो खोल ही लेंगे भाई। वैसे आज ठंड है, हाँ ठंड हमारा ये हीटर नहीं चल रहा। हीट हमारी चल रही है, पता चल नहीं रही है, चल रही है। या अच्छा अच्छा लेकिन इतनी तेज नहीं की हुई मुझे, अच्छा। अभी नॉर्मली रखी हुई। आई गेस 70 है। आज 70 ठीक है। फिर पता क्या है, उससे खुजलियाँ भी होने लग हाँ जाती बहुत हैं। ड्राइनेस हो जाती है, आगे इतनी ड्राइनेस है और ड्राइनेस हो जाती है फिर। ये जब हम ये चलाते हैं ना, अपना हीट करते हैं, तो यकीन जाने कि ज़्यादा हीट अगर करें ना तो ड्राइनेस बहुत हो जाती है। और फिर एकदम वो जो करंट नहीं पड़ता, एक दूसरे के करीब भी जाएं तो शर ऐसे चिंगारी उठेगी, शोला उठेगा। तो फिर मैं इसी तरह मैं इसको हमेशा कहती हूँ कि थोड़ा कम ही रखो, कि हम स्वेटर शूटर पहन लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। तो वो सही कह रही है कि 72 है। 72 और आज तो ज़्यादा है काफ़ी। ठंड है ना। और सबसे ज़्यादा पता कितना होता है? 74। फुल ठंड में बर्फबारी में भी 74 से ज्यादा हम नहीं 74 से होता ही नहीं है ज़्यादा। हम ये एक मतलब जो फुल सर्दी भी हो ना तो 74 होता है। तो आईमो इसने 72 किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि उसने फुल हीट अप किया हुआ है। हम बाहर से आए ना तो हमें फील होता है कि अंदर गर्म है, लेकिन जब अंदर बैठे हुए हैं तो फिर नहीं पता चलता कि अंदर गर्म है। अभी शाह बाबा आते हैं तो फिर मैंने कहा कि खाना खुना जिम गए होंगे। जी भाभी इस वक्त गए होंगे, मुझे अंदाजा है अभी गए होंगे वैसे, क्योंकि 12:30 क्लास खत्म होनी। शाह बाबा ते आए खलोते जे खलोते जे आ देखो कांस्टेबल ते लो फड़ो जी शाहजहां आप हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं आ गया आ गया। और इन्होंने ड्यूटी लगा दी। अभी और ड्यूटियां और लगनी है, नहीं इधर जाना है उधर जाना है, ये पैंट वापस करनी है, वो स्वेटर लिया था वो ठीक नहीं है, उसका कलर ठीक नहीं है, उसका साइज छोटा है। बस ये शुरू है। मिर्चें रह गई हैं, धनिया रह गया, वो लाना है ये लाना है, मतलब एक लिस्ट बन गई है ऐसे ही। बस ऐ में नहीं होती जो है में, बस वो बना दी इन्होंने। ये बहाने हैं। अब वो जो पैंट ली थी वो वापस करनी है। ये जिंदगी गुजरने के बहाने हैं, ये सही कह रहे हैं। जिंदगी गुजारने के बहाने हैं ये वाकई। जिंदगी गुजारने के एक बहाने होते हैं, वरना जिंदगी जो है ना वक्त गुजरना नहीं, बड़ा मुश्किल है। हलचल होनी रही, हलचल होती रहनी ये चाहिए। खुद कहती होते हैं कि हलचल रखें जिंदगी में, कि जिंदगी जो है ना पता चले कि जिंदगी है। तो हम फिर जिंदगी की हलचल मचाते रहते हैं, इनको मसरूफ रखते हैं जब ये फारग होते हैं तो, अदरवाइज नहीं। जब फारग होते हैं तो फिर कहते हैं चले शेरू निकलते हैं। और ये हमेशा से जब से ज़िंदगी में ये आए हैं तब से हम निकल रहे हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। और अच्छा, मैंने जो है ना, मुझे दे दें। हाँ इसे बंद कर दे। चल मुझे एक लतीफ़ा याद आ गया व्यूअर्स। लतीफ़ा तो नहीं है, एक सच्चा वाक़या है, लतीफ़े से कम नहीं है। मैंने कहा मैं शेयर करता हूँ। थोड़ा सा डर्टी है, मतलब थोड़ा नहीं बताना। स्मेली। नहीं डर्टी उस तरह का नहीं, एक फ़नी फ़नी जो होता है, हाँ फ़नी है, डर्टी नहीं, फ़नी। वो हम खेलते थे क्रिकेट ना लाहौर में, उधर कैंट में एक हमारा मैच हुआ क्रिकेट का, कैंट की टीम के साथ, लाहौर कैंट। तो वहाँ पे जो है ना हम खेल रहे थे, तो हमारा जो कैप्टन है वो जनाब ये कवर पे खड़ा हुआ था और उसने शॉट मारी। तो उसे बड़ा शौक़ है ना, कलाबाजियाँ मार के दिखाता है मैं बड़ा फिट हूँ और बड़े मज़े से पकड़ता हूँ और मैं बड़ा सही खिलाड़ी हूँ। तो उसने हमें डाइव डूइव मार के ना चौका रोक लिया और उसके बाद जो है चल पड़े, मैच चलता रहा। तो क्या हुआ कि कोई खिलाड़ी जब आउट होता है तो सारे क्रिकेटर्स इकट्ठे हो जाते हैं, मुबारकबाद दे रहे होते हैं और गुड कैच या गुड बॉल ये करते हैं। तो वो हम सा एक आउट हुआ तो वो आ गया ना, और उसने कहा यार मुझे जो है ना उधर से बड़ी स्मेल आती है, जहाँ मेरी फील्ड जहाँ मैं कर रहा हूँ ना उस जगह से। हमने कहा पता नहीं क्या होगा। खैर थोड़ी देर बाद फिर एक खिलाड़ी आउट हुआ, फिर हम इकट्ठे हो गए। वो फिर आया, कहते नहीं यार कुछ चक्कर है, उधर स्मेल है। तो समझ नहीं आई कि चले जाना तो उधर जाके देखना। वो पूरी ग्रीन ग्राउंड साफ सुथरी। अच्छा तो मैंने कहा गौर से देखना। खैर वो तीसरी बार जब हुआ ना, मैंने कहा ये कोई इशू है। तो मैंने कहा यार ये चेक कर, इसकी जो कमीज़ है ना पीछे,
यहाँ तो नहीं कुछ चीज़ ऐसी लगी हो गिरा हो। तो चेक किया तो वो जो है ना किसी कुत्ते बिल्ली का ना जो फुजला के क्या होता है वो उसको लग गया। हाय हाय, गिरा होगा ना, गिरा ना, कैच पकड़ हाँ ले। कैच पकड़ना फील्ड की तो गिरा है, रोल ओवर हुआ है और हाय हाय। रगड़ा खाया है और सारी कमीज शमीज की काली पीली हुई थी ना। तो उससे समझ नहीं आ रही थी कि ये घास का कलर है या क्या कलर है। वो सारे कलर मिक्स हो गए, वो सतरंगी कलर रेनबो बन गया। वो कह रहे बू आ रही है मुझे बड़ी और वो बू आ सारे मैच में बोल बोल के पागल हो गया कि बू आ रही है। तो हमने कहा कि यार अब जब भी ये खिलाड़ी आउट होगा ना, गेट आउट, हमारे करीब नहीं आना तूने, दूर से ही टाटा कर दे, वेल डन वेल डन। वो दूर से ही अब टाटा कर रहे हैं। वो आगे जब बताया बड़ी आपने बात में तो मजा आया। मैंने कहा यार वो एक आता है ना ये कभी कभी समझ नहीं आती कि कहाँ से बुएं आ रही वो हैं। पागल हो गए, कह रहे हैं यार जिधर जाऊं बू मेरे साथ चल रही है, मुझे समझ ही नहीं आ रही। चलो जिधर फील्ड कर रहे हैं उधर तो हो सकता है कोई हवा या आसपास कुछ हो तो उसकी स्मेल लगी आ रही है। अब वो कहते हैं मैं तुम्हारे पास आए हैं इधर खिलाड़ियों को मुबारकबाद देने, तो वो मेरे साथ इधर भी ट्रैवल कर रही है। वो जिधर जाए वो कह रहे मुझे स्मेल आई जा रही है। बाकी हमें भी बड़ी हैरत हुई। ठीक है। और बस और बस एक आते ही देखा चुटकुला सुना दिया इन्होंने और हंसा के बुरा हाल किया, ये इनका काम है। तभी मैं कहती हूँ कि शाबा बातें हैं तो उनके जरिए भी बात होगी। तो ये बात देख ले, उन्होंने आते ही एक चुटकुला याद आ गया उन्हें, है ना सर? याद आया देखें यार, बात पता क्या है, ये जिंदगी जो है ना ये है इल्यूजन। इल्यूजन की उर्दू क्या हो सकती है? एक ख्वाब। हाँ हाँ इल्यूजन, हाँ ख्वाब भी कह सकते हैं। मना इल्यूजन एक तसव्वुराती तस्वराती, हाँ कुछ ऐसा है जो चल रहा है और पता नहीं ये क्या है, कब ख़त्म होगा, क्या होने। तो उसको इल्यूजन कहते हैं ना, कि ये समझ नहीं आनी। तो जो इसको समझने की कोशिश करता है ना वो लगा जाता है। और ये कोई समझ भी नहीं सकता, ये भी मैं आपको बता दूं, जितना मर्जी सियाना बने। और हमने भी बड़ी इस पे जो है ना वो की दिमाग। अगर उन्हें हमें नहीं कहती है जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। ये देखे ना, ये है मतलब वो पुराने लोगों की बातें जो है ना बड़ी ज़बरदस्त। ये आपने जो बोला है जिंदगी कैसी है पहेली, मतलब पहेली है वाकई। ये इल्यूजन मीन पहेली है जिसका कोई सिरा नहीं है, कोई सिरा समझ नहीं नहीं है। आता कि ये कब खत्म हो जाए, कब सोल्यूशन, क्या बात पता क्या है, सोल्यूशन। बस कि नबी पाक के पास भी बंदे आए तो नबी पाक ने मसला उन्होंने बताया मसले, तो उनमें से एक बंदे ने उसका सोल्यूशन मांगा। बाकी सब दुआएं कर देंगे, न्याज दे देंगे, कुर्बानी कर देंगे तो बच जाएंगे। सोल्यूशन क्या होना चाहिए? कुर्बानी है, लेट्स गो कुर्बानी। फलाना है, मूव आउट होना, हिजरत करना है, हिजरत कर जाओ। सोल्यूशन पे काम किया करें। बिल्कुल तो ये इसका क्या सोल्यूशन है कि समझ ही नहीं आ रही ज़िंदगी, तो इसको क्या करना है? उस चीज को छोड़ दो जो चल रहा है आज, इसके मुताबिक सही अपने decision ये भी करो। सही, हाँ। इसका मेरे हिसाब से जो मैं करता हूँ फॉलो और मुझे इसका फ़ायदा हो रहा है कि उसको एक्सेप्ट कर लें कि इसमें दिमाग को ट्रू 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 नहीं करना, लीव इट। अगर आप क्लियर हैं कि ये ऐसे इल्यूजन है और ख्वाब है तो लीव इट, चलने दें, ऐसे ही चलने दें। अपने आज को उसके मुताबिक चलाओ जिसने बनाया है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें जो है एडजस्ट होके खुश रहने के तरीके ढूंढें। बस ये अब लंबी बात हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे, मैं नहीं चाहता। मैंने बहुत कर दी है, बहुत बोर कर देती मैंने हैं बोरियत आप, बहुत बोर करती हैं वैसे, मैंने देखा। मैं देखता हूँ ना वीलॉग्स, तो मैं आपकी मगर लोग बहुत पसंद करते हैं, बातें बहुत बड़ी हैं। हमारे फैमिली मेंबर जो है ना बड़ा पसंद करते हैं। नहीं सर, बातें बड़ी हैं इनकी, ज़बरदस्त हैं, लेकिन उसमें इंटरेस्ट डालना चाहिए। ये जैसे मौलवियों की जो पुरानों की आप देखेंगे ना तकरीरें, तो वो जज्बाती और बड़ा गुस्से में और उसमें बोलते हैं। अब ये जो मौलवी है ना मिर्ज़ा,
और एक मकसूद है, मसूद है, दो ये उसमें लतीफ़े भी डाल देते हैं, उसमें तंज़ व मज़ाक भी डाल देते हैं और साथ कुरान की बात भी ठोक देते हैं, नबी पाक का भी कोई सिलसिला बता देते हैं और साथ एक जुगत भी लगा देते हैं। उससे क्या होता है कि लोगों को अट्रैक्ट होता है, वो इंटरेस्ट पैदा होता है और वो सुनते हैं। तो आप भी जो अट्रैक्शन दिया करें, मैं बोर देती ना। हूँ देती हूँ। कोई ना कोई और बात दरमियान में शुरू करती हूँ, हाँ फिर उसको शुरू कर देती हूँ। बहरहाल मेरा तो मकसद सिर्फ ये है असद कि इस व्लॉग से अगर कोई हमारी अच्छी बात सीख जाता है, समझ जाता है, जो उसके काम आ जाती है, तो यही हमारे व्लॉग की नहीं, कामयाबी वो है। समझते हैं। यही हमारे उनको व्लॉग की कामयाबी है। वरना ही हा 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 हो हे हो, वो तो वो तो भरा हुआ है यूट्यूब, या- जिधर मर्जी खोलो आपको नजर आ जाएगा। नहीं नहीं, वो करने दें उनको, वो करें, एंजॉय करें, उसको भी करें, वो कोई भी वो करें, नहीं है। हाँ, वो भी नहीं वो है। हम भी करते, मैं बहुत ही हा हू करता हूँ और बच्चे डर जाते हैं कि जिन भूत आ गया कोई। तो वो करें, बिल्कुल हाँ करें। हाँ वो हाँ। ऐल। मतलब शहीना अक्सर मैं अपने व्लॉगर्स को अपने व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ कि शाहीना असद ऐसी भी है, ये ऐसी ये नहीं है, ये नहीं है कि सिर्फ वो बात कर रही है और बता रही है आपको अच्छी बातें। वो मजा भी है उसके अंदर, हंसती भी है, असद की बातों पे खिल जाती है, खुद हंसाती है। तो इसलिए ये बात नहीं है, सिर्फ वो स्टार्ट मेरा हमेशा होता है कि मैं वो बात कर जाऊँ स्टार्ट में, फिर शायद हमारे बाकी व्लॉग में टाइम ना लगे। तो इस वजह से कुछ थोड़ा सा तो इजाज़त है ना व्यूवर्स, बता दें, इतनी सी इजाज़त होनी चाहिए। अच्छा, मैं अब अनानास लाया हूँ अच्छा और मैं काटने जा रहा हूँ। हाँ, बंद करें, इनसे काटे। हाँ, तो मैं व्यूअर्स को भी दिखाना मैं तो चाहता हूँ कहती हूँ दिखाएं। हाँ, कि कैसे अनानास। अच्छा वो लिफाफा जो है ना पकड़ लीजिएगा। अच्छा, लिफाफा पकड़ ले, ये मुझे दिखा दे, मैं ले आपको जी, दिखाऊं। अनानास उड़ाते हैं चल हाँ के। आ अभी जाए। बंद करें ना। ले जी, आ गया, ये आ गया जी, आ गया। देखा साइज, देखा इसका कितना बड़ा है। इसको सूंघा करें, अगर इसमें फ्रेश अनानास पाइनएप्पल की फीलिंग आती है, स्मेल आती है, वो लें। ऑरेंजिश हो ज़रा, ग्रीनिश येलो नहीं, ऑरेंज येलो, गुड। और अब मैं इसको ज़िबा करने जा रहा हूँ। देखिए कलर, देखिए ये सीक्रेट सीक्रेट वेपन। ये पूरा थ्रू हो गया, देखें, बड़ा लंबा था, बहुत बड़ा था, इसलिए ये बिल्कुल एंड तक चला गया। लो जी, तैयार। अब इसके पीसेस करें। मैं थोड़े छोटे छोटे पीस करता हूँ कि सब खा लें, पूरा सर्कल ज़रा ज़्यादा हो जाता है।
ऑल डन। ले जी, आपने देख लिया पाइनएप्पल। अब आपको फाइनल उसका वर्जन दिखाऊं। ये ले जी, ये बन गया और ये ढप गया। छुट्टी, डन। फ्रिज, मिस्टर फ्रिज। टाटा, मिलते हैं। व्यूअर्स, आपको मैं दिखाऊं जो ये काटा है ना पाइनएप्पल, तो इसके अंदर से क्या कैसा लगता है, इसका शेप क्या है, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये ऐसी शेप इसकी है। और ये तो अभी इसमें काफ़ी लगा हुआ है, ये जो है ना मेवा है इसमें भी बहुत सारा। तो मैं इसके अभी 2 पीसेस करके ना ये नीचे से भी निकालता हूँ और ये साइडों पे भी काफ़ी माल जुड़ा है। ये माल भी हमारा है, इसके पैसे दिए हुए हैं, तो ये भी निकालता हूँ। यार एक बात बताएं, मैं जो है कॉफ़ी चाय पीता हूँ, बहुत रेगुलर तो नहीं लेकिन फिर भी पीता हूँ। लेकिन ये है, ओए आपसे कोई बात नहीं कर रहा, मैं अपने व्यूअर से बात कर रहा हूँ। आप हमें प्लीज़ मत छेड़ा करें इस तरह। मैं जब अपने व्यूअर से बातें कर रहा हूँ ना, मुझे और कोई नहीं चाहिए। तो मैं यार ऐसे खुदा की कसम, ये जो है ना बड़ी, पहले जाके इनसे 2 हाथ तो करूँगा पहले, फिर आपसे सवाल जो मैं है वो जारी रखूँगा। देखें जी, आप जो है ना, जब मैं बिज़ी होता हूँ ना अपने व्यूअर्स के साथ, जी जी, कोई इंटरप्शन नहीं चाहता मैं। मेरे तरफ करें, मैं आपके साथ क्यों करूँ? व्यूअर आप देख लें, इनका देखा गुस्सा कैसा है इनको। आपके दरमियान में हमने कोई बात कर दी गलती से, गुस्सा की हो गई जनाब, तो ये देखो कैसी बातें आगे। मुर्गी बन जाए, मुर्गी बने, मुर्गी सजा है। क्या बातें कर रहे हैं जी? ओए हम मुर्गा बनते रहे हैं, नहीं, तो आप मुर्गी नहीं बन सकती, हम मुर्गा हमने बने। कभी आपको मुर्गा नहीं बनाया जी। वो नहीं, आप नहीं बनाया। मतलब हमें जब पेनल्टी पड़ती थी उस्ताद से या किसी से भी बड़े से, टीचर से होता ना, टीचर टीचर वगैरह, से। तो वे मुर्गा बन जा। और टीचर वो मतलब मर्दों को बनाते थे, मर्द, लड़कों को। हाँ, वो अब हमें ये नहीं, लड़के को ये नहीं कैसे मुर्गी बन, हमें ऐसे हो जाएगा, हमें मुर्गी कहता है। ये नाक में देखे उंगली डाली है, ये अल्लाह की कसम, नाक में उंगली, ये देखे। नाक में उंगली नहीं को डालता, भला ये मन है? मैं तो कहता हूँ ये चीज़ें करें। ये लोग ऐसे इन चीज़ों को जो है छुपाते हैं। ये अभी जैसे मैंने आप कॉफी की बात कहा कि ये जो मैंने दोस्त का वाकया सुनाया कि उसको मैंने कहा थोड़ा सा ज़रा है जो नापाक सा मजाक है, गंदा सा है, एकदम सीरियस, पता नहीं गंदा क्या है। अब उसको थोड़ी सी शिट लग गई, उसको स्मेल आ रही, ये गंदा तो नहीं है, ये तो हकीकत है। चाय की क्या अब आप नाक साफ कर रही हैं तो कोई बात नहीं। कोई बात, चाय या कॉफी की का? चाय मैं उनसे पूछ रहा था, मैं आपको फिर से सवाल करूंगा कि चाय जो है ना, मुझे भी और बीबी गुल, मुझे तो खैर ठीक है, ओके है मेरे लिए, पिए तो थोड़ी सी मुझे कॉफ़ी से इनसे थोड़ी सी एसिडिटी होती है, और गैप 2-3 दिन का हो जाए तो ठीक है। तो मैं भी चाय पीने लगा हूँ, तो मैंने कहा इसका ऑल्टरनेट बताएं, क्योंकि चाय का जो नशा है ना वो अपनी जगह है, इसमें कोई शक नहीं है कि इसका मज़ा बड़ा है। मैं कोई बहुत रेगुलर ड्रिंकर नहीं हूँ, महीने में कह लें कि 4 बार, बहुत ज़्यादा 4 बार, मैक्सिमम 5 बार। तो अब ये मैं चाय बना रहा हूँ, तो बताइए इसका ऑल्टरनेट क्या है? ये चाय कोई कैसी बनाएगी, एसिडिटी कम हो या ना हो, और कॉफ़ी तो खैर मेरे लिए ठीक है, चाय का थोड़ा सा होता है। तो अब ये मैं ले आया हूँ, ये देखिए जी, मैडम जान तो नहीं पी रही, सर जान पी रहे हैं, सर जान। ये इसको वापस रखने, ले व्यूअर्स, सुरख कर दिए हमने इसको, सुरख। इस पे अपनी चाय रखेंगे, और ज़रा तगड़ी चाहता हूँ मैं, तगड़ी, एक नहीं
दो पत्ती चाय और इसी के अंदर चीनी भी इसी के अंदर। एक 1.5 चम्मच काफ़ी है, मोटा नहीं होना चाहता मैं। तो इसको अभी उबलने देंगे, काफ़ी देर तक मैं इसको उबालता रहूँगा। काफ़ी इसको मतलब काफ़ी देर रखता हूँ वैसे, मैं बड़ा तगड़ा बनाता हूँ इसको, उसे कहते हैं ट्रकों वाली। तो ट्रकों वाली बना रहा हूँ मैं, तो आपको दिखाता हूँ जब ये तैयार हो जाती है। उबल के अभी थोड़ी देर और, अभी पूरी पक्की नहीं है, अभी पकाता हूँ इसको। वेल डन। ये देख रहे हैं गिर गई, इसलिए कहते हैं आप काम ना किया करें, सही कहते हैं। खुद वो मौजे कर रही हैं अंदर, लंबी पड़ी है ऐसे, चाय शौहर बनाता है और ये गलती भी कर देते हैं। चले, चाय तो बन गई ना, अब इसको साफ करना पड़ेगा। व्यूअर्स, अब मैं चाय लेके जाता हूँ उनके पास और देखना उनके तासुरात। थोड़ी सी पी लेती हूँ, कोई दर्द तो होती है लेकिन कोई नहीं, थोड़ी सी पी लेती हूँ। देखना, आपको दिखाता हूँ किधर है। ओके, चाय इनको ख़राब करती है, देखें अब क्या कहती हैं। ओह माय गॉड, इस पर भेंचर ये अच्छा, बड़ी प्यारी चाय बनाई है। पी लें थोड़ी सी झक लूँगी आपसे अगर बर्दाश्त की तो। क्या कहा था? क्या इसको बंद करें? आपने क्या बोला? मैंने कहा आप कहती हैं कि चाय ज़रा मुझे वो कर हाँ, देती है, जलन करती है। तो मैं कहा जब बन के आएगी ना, चलो कोई थोड़ी सी पी लूँगी, थोड़ी पता सी नहीं पी पीनी लूँगी। चाहिए कि नहीं, वैसे थोड़ी सी पीऊँगी तो नुकसानदेह है। थोड़े तो ज़्यादा पिए। मतलब कहने का मतलब है कि थोड़ी भी नुकसानदेह है, ज़्यादा तो पी ज़्यादा नहीं। फिर ज़्यादा नुकसानदेह हो मतलब पी तो सकती हूँ मगर खुद मुहतात हूँ क्योंकि अंदर इतनी गर्मी हो गई, मैंने कॉफ़ी इतनी पी ली आइस कैप। जाएगी। ये देखें, इसका कलर तो देखें, कलर तो इसका बहुत ही अच्छा होता है शिरीजा में। ये तो बादशाह लोग मुझसे कहते थे कि बना के दो उस्ताद जी। कौन से बादशाह? ये जितने भी गुजरे माजी में, अच्छा, सब मुझे कहते बना के दो उस्ताद जी। तो चले थोड़ी सी पी लें, खैर है, 2-3 से चलो पी कर पी लें। लूँगी। चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। आप करें, मैं तो ठंडी पीऊँगी अगर पीऊँगी तो। अच्छा, ये जो है ना, खामोशी दिखाता हूँ आपको कि ये जो क्या गप्पे मार रही हैं, निकलने की कर रही हैं, बड़ी महफिल जम गई है महफिल। ये चीज़ जो है ना, ये देखें, जानू कि ये अपना पाकिस्तान हमने बनाया होता है, हम खुद सोच रहे होते हैं हम ये नहीं तो ये हो जाएगा, ये नहीं तो ये। अच्छा साहब का भी फिदा अपना आवाज पाकिस्तान होती है, होता है। बॉडी से आवाज आती है। अच्छा, आपकी बॉडी आपको बताएगी। अच्छा साहब भी कहते हैं आवाज आ गई। हाँ, नहीं, पता ही नहीं। अच्छा साहब एक इतनी सी चीज को जाएगी ना इनको, ये आवाज आ गई। हाँ, तो आवाज आ जाती है, आप सुनती नहीं है अपनी अच्छा। बॉडी को। नहीं, आपकी हाँ, आवाज़, मैं नहीं सुनती आपकी आवाज़ जो है ना नीचे से आती है, इसलिए आपको समझ नहीं आती है। हमारे दिमाग में से आती है आवाज़। ये क्या बात इन्होंने कर दी है? मतलब पेट से नीचे का मतलब पेट से। अपनी बात है, देख ले तू, उन्होंने अपने तरीके की बात कर यार एक तो इनका दिमाग पता नहीं कहाँ जाता है ये, आई स्वेयर। चलो चलते हैं। चले निकले। निकले ये बातें कुछ अपनी इन्होंने करनी शुरू कर दी। ये आवाज आ पेट बोले रही। ओ हम। भाई, मैं ओ भाई, समझा पेट करे भाई। बोलते ना। लाइटें कमाल ऑन है है। यार, ये लोग कमाल की दुनिया है भाई।
समझ से बाहर है भाई। नीचे से आवाज़ का मतलब कुछ वही वाला तो नहीं होता ना, नीचे तो कई चीज़ें हैं, कहीं से भी आवाज़ आ सकती है, लेकिन नहीं, इन्होंने गलत ही सोचना होता है। अच्छा, ये एक हकीकत है कि जब आपको कुछ देखें, आप जब करती हैं ना कोई गलत हरकत, तो क्या दिल दिमाग आपको नहीं कह रहा होता कि यार ये गलत हो गया है? आवाज़ ही है वो क्या है, यार ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये मेरे ख्याल में अच्छा नहीं हुआ। उस वक्त तो आप कर लेती हैं, लेकिन बाद में एहसास होता है, वो जो एहसास है उसी को हम कहते हैं कि आवाज़ आ गई। नहीं, वही कह रही हूँ ना कि आपको खाने, हमें तो कोई गलती कर दें तो हमें एहसास होता है ये गलती हमने कर दी, ये नहीं करनी चाहिए। हमेशा मेरे ये होता है कि ये गलती मैंने क्यों कर दी, अल्लाह मियाँ तो मुझे माफ़ कर दे। किसी से भी कोई गलत बात कर दी या फील हुआ कि उसको बुरा ना लगा हो, कुछ भी, तो मैं ये सोचती हूँ। लेकिन ये खाने पीने की आवाज़ मुझे नहीं आती, सच मैं बताऊँ। ये मुझे फील बाद में हुआ है, बड़ा रियलाइज करके चाय पीऊँ या मैं कॉफ़ी पीऊँ तो मेरे अंदर खुश्की हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। नहीं, फौरी नहीं फील होता आपको, देर से पता नहीं, है, फौरी feel- नहीं, कई दफा वो जो आइस कैप में पी रही थी ना, फौरन आ जाता और है। वो मैंने काफी पी तो मेरे अंदर एक घूंट ही जाता था, तो अंदर एक बर्निंग से शुरू हो जाती, तो फौरन हो जाता। तो बस ये जो फौरन हुए ना, इसी को आवाज़ कहते हैं कि मतलब आपको बॉडी कह रही है कि यार ये गड़बड़ हो गई है। कई चीज़ों में आपको नहीं फौरन आता, लेट आता है, तो इसी को आवाज़ कहते हैं। हम चूंकि स्पोर्ट्समैन लोग हैं, एक्सरसाइज करने वाले हैं सारी ज़िंदगी, मैंने तो खैर बहुत ज़्यादा इसमें गुजारी है ज़िंदगी, तो मुझे तो 5 सेकंड में आवाज़ आया, आई स्वेयर 5 सेकंड में आवाज़ आई, मुझे ये भी ठीक नहीं आप भी है। सुना करें। नहीं, मुझे जब आइस कैप मैं पीती थी ना, बहुत पी ना ऊपर नीचे, तो मुझे एकदम एक घूंट ही जाता था ना, तो अंदर फील होता था कि कोई मतलब बर्निंग हुई है एकदम से। हालांकि बर्फ से भरी हुई वो आइस कैप होती है। नहीं, बर्फ गर्म होती है। बर्फ भी गर्म है, बर्फ गर्म होती है। देखो अंदाज से लिखो, हर चीज ही गर्म है। तो यहाँ पे जब बर्फ पड़ती है कनाडा में, आपने कनाडा में बर्फ पड़ती तो सर्दी लगती है, ये कह रहे गर्म है। अच्छा मेरी बात सुने, हमें पहले जो है ना वुडबाइन जाना चाहिए क्योंकि वो बंद हो जाएगा। जल्दी निकले जी, एक और मॉल पे आ गए हैं। वही वाली बात जो आपको कही थी ना, एक पजामा लिया है, वो पसंद नहीं आया, 2 दिन बाद आके उसे वापस कर रहे हैं। ये देखिए, हमारी तो यही आदत है, हमने मैं कहती हूँ 100 दफा कमर भी मेरी किसी मामले में। मॉल तो खैर खूबसूरत है। ये है वुडबाइन मॉल, वुडबाइन। ये फ़ोन पे बिज़ी हैं, वो भाई साहब वॉक कर रहे हैं। फिज़ा जान मस्त हुई हुई हैं, मौजें कर रही हैं। तो मैं उनका भाड़ा दे देती हूँ, छड्डो जी, उधर नहीं छड्ड रहे कुछ ही छड्ड जी, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲੋਗੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਚਣਾ मैं रात में इजाज़त दे रहा हूँ इधर मॉल में, तो इंशाल्लाह ताला तो चक्कर लगाने हमें तो वैसे आने नहीं देते, बस मुझे बता दें कि हम आ रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। खाने पीने का क्या है, एक सामान बनेगा, एक चावल बनेगा। अच्छा व्यूअर्स, ये वुडबाइन मॉल है, हमें इधर 18 साल हो गए हैं। मॉल बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पता नहीं क्या बात है, 18 साल से ये मॉल डल, बिल्कुल डल ख़त्म हुआ है बेचारे। मतलब देखें, दुकानें भी कई बंद हैं, बंदे नहीं हैं, खाली हैं स्टोर सारे। आई डोंट नो क्या इस पे एक नहुसत क्यों है, क्या अल्लाह का कोई हिसाब है, नो आइडिया। मॉल बहुत खूबसूरत है, बड़ा उन्होंने पैसा लगाया है। 2 पार्टियां इसको ले चुकी हैं अभी तक, और बड़ा रेनोवेट किया उन्होंने, लेकिन चल नहीं रहा है, इस तरह नहीं चल रहा जिस तरह से चलना चाहिए। एनीवेज, हम इधर आए हैं पजामा वापस कर ले। ओके, हाँ जी, इस मॉल में एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मॉल चले ना चले, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है,
शायद आपने पहले देखा हो, ये वाकई बहुत प्यारा है। ये बच्चों की अम्यूज़मेंट आर्केड है, बड़ी चीज़ें हैं इधर, ये देखें। बच्चे इधर बड़े जो हैं इंजॉय करते हैं। डायनासोर्स हैं, वाह, बड़ी उनके खेल की चीज़ें हैं। देखें पागल हुआ है, छोटा सा बच्चा है, डांस कर रहा है। लेकिन ये भी जो है ना, वक्त के साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि ये भी बिल्कुल डेड ही हो गया है। ट्रेन आ रही है? नहीं। व्यूअर हैंड हो गया, वो शॉप ही नहीं है इधर। अर्बन प्लैनेट और अर्बन बिहेवियर, ये दो अलग शॉप्स हैं। तो हमने जाना है अर्बन प्लैनेट, इधर था अर्बन बिहेवियर, तो हैंड हो गया। उन्होंने कहा ये दुश्मन की दुकान है, निकल जाओ। तो हम निकल गए। ये देखें बोकियाँ गिरी हुई सबकी, उदास, अफसोस। यार इसका बड़ा दुख होता है, ये मॉल चल नहीं रहा, और आज नहीं 18 साल से ही नहीं चल रहा। इतना नहीं 18 साल पहले जब मम्मी के साथ हम आते थे, इतना ये चलता था, इतना रश था इस पे। उधर सीयर्स था और उधर हडसन बे था। अभी भी है हडसन, नहीं अब तो खत्म नहीं, हो अब तो गया। खत्म, सीयर्स कब का खत्म हुआ पड़ा है। और ये इतना रश था उस वक्त। मोएज को लेके जब आए थे और इधर सेंटा क्लास की गोद में बैठ के तस्वीर उतारी थी मोएज, छोटा सा था मोएज। ये 96 की बात है दरअसल, ये बात 96 की है। वो ये तो बहुत पुरानी बात हाँ, है। उस वक्त ये बहुत चलता था पिज्जा, उस वक्त बहुत चलता। चले निकले। बस ऐसे ही है बस। लो जी, शामा पै गई, तुम नहीं आए। ये देखें शामा पै गई और ये निकले हुए हैं मस्ती करने। ये मुझे नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। ये जो है ना हल्की सी नज़ार की चांदनी सी बनती है। ये देख रहे हैं ना बादल, ये बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। नो डाउट मैं बड़ा पसंद करता हूँ इसको। आपको अक्सर दिखाया भी है मैंने। ये अब वॉलमार्ट आ गए, चलो दिखाते हैं क्या है। ये खड़ी हैं जनाब, इन्होंने हमें दीवाना कर दिया। आप लोग सोते नहीं हैं? अब आप सो जाए, मैं कहती हूँ बस करते हैं। कोई सोता नहीं है, हर बंदा जो है ना शॉपिंग पे निकला होता है। कोई वैसे आपकी ज़िंदगी नहीं है यार। मैं ये कह रही हूँ कि आप व्यूवर थक गए हैं, टाटा कर दें, उनको टाटा सुला करें रहे। आप। व्यूअर सो रहे हैं, सो रहे हैं, बहुत हो गई है बड़ी हो viewers। गई है वाकई। लो जी सज्जन मित्रों और सज्जनियों मित्रियों, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕੱਲ ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਏ।
ਬਾਏ ਬਾਏ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰੋ ਕੱਲ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸੱਜਣੀਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ अच्छा नहीं सज्जन मित्र इंसान को ही मैंने कहते कहा हैं मैं इंसान को कहती हूँ मजमू इन दोनों को लेकिन चलो सज्जनियां भी कह देनी हैं भाई सज्जनियां तो पहले ने बाद जो सज्जनियां। कुछ और है ठीक है ये सजनियां पता कौन सी हैं हाँ जो सज वज के वजती है सज वज के सजनी सज्जनी हाँ सज्जनी बहुत प्यारा लफ्ज़ है तो आप मेरी सज्जनियां हो ते सज्जनियों ते मित्रों ते सज्जनों फिर अल्लाह हाफिज़ खाने कमेंट्स करो सब्सक्राइब करो शेयर ज़्यादा तो ज़्यादा करो ताड़ी मेहरबानी है बहुत शुक्रिया और इसके साथ इजाज़त लेते हैं अल्लाह ताला ज़िंदगी दे तो कल फिर मुलाकात होती है शाइना असद उसकी सारी फैमिली ओके बाय 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 करते हैं फिदा जानू बाय बाय चल अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ अल्लाह हाफिज